ایک ایسی ولادت جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ عبد المطلب، خوشخبری سناؤ، آپ کے گھر پوتے کی پیدائش ہو گئی ہے۔ عبداللہ کا بیٹا، میرا پوتا۔ بارہ ربیع الاول پیر کا دن تھا۔ ابھی سورج کی پہلی کرن نمودار بھی نہ ہوئی تھی، مگر مکہ کا ایک گھر اس دنیا کے سب سے بڑے نور سے روشن ہو چکا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، برسوں کی پیاسی زمین نے گویا سکون کی سانس لی۔ وہ خشک سالی جو عرب کا مقدر بن چکی تھی، اس رحمت کے آنے سے پہلے ہی خوشحالی میں بدل گئی۔ ہر گھر میں برکت تھی، ہر دل میں امید، جیسے پوری دھرتی اپنے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو رہی۔ وہ سب سے بڑی نشانی حضرت آمنہ کے جسم اطہر سے ایک ایسا نور نمودار ہوا جس نے مکہ ہی نہیں بلکہ بصرہ اور شام کے محلات کے بھی روشن کر دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ سردار مبارک ہو، آپ کے گھر وہ پوتا پیدا ہوا ہے جس نے مکہ کی گلیوں کو نور سے بھر دیا ہے۔ عبداللہ کا بیٹا، میرا پوتا۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوش خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ اے میرے لاڈلے، تو اپنے باپ کی نشانی ہے، تو میرے اجڑے ہوئے گھر کی رونق ہے۔ لوگو سن لو، میں اس بچے کا نام محمد رکھتا ہوں تاکہ آسمانوں میں اللہ اور زمین پر اس کی مخلوق اس کی حمد و ثنا کرے۔ یہ وہ نام تھا جو عرش پر پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ عبد المطلب نے دعا مانگی اور مکہ کے در و دیوار سبحان اللہ پکار اٹھے۔ اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ مبارک ہو، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ عبداللہ کا بیٹا؟ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جا صوبیہ، اس خوشخبری کے صدقے آج سے تو آزاد ہے۔ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے غلامی سے نجات دی۔ ابو لہب نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، مگر اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعہ کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا دودھ نوش فرمایا، اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہیں کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی،
मगर उसके भी दूध ना था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लागर था कि काफिले वालों के साथ ना चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा चमक उठा। इनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज्यादती का बाइस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा, ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस चलूं। उससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूं। शौहर ने उसको मंजूर कर लिया और हजरत हलीमा उस यतीम को ले आई, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा और हजरत आमिना ही के घर में नहीं बल्कि कायनात आलम के मशरक और मगरिब में उजाला होने वाला था। हजरत हलीमा की सूई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरूर कायनात उनकी आगोश में आ गए। अपने खैमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठे तो बारान रहमत की तरह बरकात नबूवत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा के मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम ने भी और उनके रजाई भाई ने भी खूब शिकमसैर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। उधर ऊंटनी को देखा तो उसके थिन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा के शौहर ने उसका दूध दुहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और शिकम सैर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। हलीमा, तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि ये निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे यही तवक्का है कि अब हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि उसके बाद हम रहमत आलम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसकी गिर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगीं कि ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? अलगरज हम अपने घर पहुंचे। वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थनों में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीला वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनाचे सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थीं। मगर यहां तो चरागाह और जंगल का अमल दखली नहीं था। ये तो रहमत आलम के बरकात नबूवत का फैज था, जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। अलगरज इसी तरह हरदम हर कदम पर हम बराबर आपकी बरकतों का मुशाहिदा करते रहें, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छिड़ा दिया। आपकी तंदुरुस्ती और नश्व नुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। दस्तूर के मुताबिक अब अमानत उसके असल मालिक के हवाले करने का वक्त आ चुका था। हजरत हलीमा भारी दिल के साथ मक्का पहुंची। गलियां वही थीं, मगर आज उनके हाथों में पूरी कायनात का सुल्तान था। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हैं। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा बच्चे को उनकी गोद में देती हैं। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा ने अपने दिल के टुकड़े को सीने से लगाया और हजरत हलीमा को उनकी खिदमत के बदले बेपनाह इनाम व इकराम से नवाजा। मगर हलीमा के लिए सबसे बड़ा इनाम वो बरकतें थीं जो वो 2 साल अपने साथ समेटती रहीं। कायदे के मुताबिक अब अमानत लौटाने का वक्त आ चुका था, मगर जिन आंखों ने 2 बरस तक आसमान से बरकतें उतरते देखी हों, वो इस नूर से जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकती? मगर मोहब्बत हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल देती है। इसी साल मक्का में एक खौफनाक वबा फैली हुई थी। हजरत हलीमा ने इसी बीमारी को एक ढाल बनाया और हजरत आमना से दरख्वास्त की, आमना, शहर की हवा जहरीली है,
अपने लाडले को कुछ और दिन हमारे पास रेगिस्तान की साफ हवा में रहने दो। चनाचे हमने इस वबाई बीमारी का बहाना करके हजरत बीबी आमना को रजामंद कर लिया और फिर हम रहमत आलम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और आप हमारे पास निहायत खुश खुर्रम होकर रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते। एक रोज मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रोजाना कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनाचे आपके इसरार से मजबूर होकर आपको हजरत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाजत दे दी और आप रोजाना जहां हजरत हलीमा की बकरियां चरती थीं तशरीफ ले जाते रहे और बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत है, आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खुसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। एक दिन आप चरागाह में थे कि एकदम हजरत हलीमा के एक फर्जंद जुमरा दौड़ते और हाँपते कांपते हुए अपने घर पर आए और अपनी माँ हजरत बीबी हलीमा से कहा कि अम्मा जान, बड़ा गजब हो गया। मोहम्मद को 3 आदमियों ने जो बहुत ही सफेद लिबास पहने हुए थे चित लिटाकर उनका शिकम फाड़ डाला है और मैं उसी हाल में उनको छोड़कर भागा हुआ आया हूँ। ये सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुंचे तो ये देखा कि आप बैठे हुए हैं, मगर खौफ और हिरास से चेहरा जर्द और उदास है। हजरत हलीमा ने इंतहाई मुशफिकाना लहजे में प्यार से पूछा कि बेटा क्या बात है? आपने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझको चित लिटाकर मेरा शिकम चाक करके उसमें से कोई चीज निकालकर बाहर फेंक दिया और फिर कोई चीज मेरे शिकम में डालकर शगाफ कोसी दिया, लेकिन मुझे जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। वाकया सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए और शौहर ने कहा कि हलीमा, मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसीब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम उनको उनके घर वालों के पास छोड़ाओ। उसके बाद हजरत हलीमा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा आए, क्योंकि उन्हें इस वाकया से ये खौफ लाहक हो गया था कि शायद अब हम उनकी हिफाजत ना कर सकेंगे। हजरत हलीमा ने जब मक्का पहुंचकर आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि हलीमा, तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी, फिर इस कदर जल्द वापस ले आने की वजह क्या है? जब हजरत हलीमा ने शिकम जाग करने का वाकया बयान किया और आसीब का शुबा जाहिर किया तो हजरत बीबी आमना ने फरमाया कि हरगज नहीं, खुदा की कसम, मेरे नूरे नजर पर हरगिज कभी भी किसी जिन या शैतान कामिल अमल दखल नहीं हो सकता। फिर अय्याम अमल और वक्त विलादत के हैरत अंगेज वाकयात सुनाकर हजरत हलीमा को मुतमईन किया और हजरत हलीमा आपको आपकी वालिदा के सुपुर्द करके अपने गांव में वापस चली आई और हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की आगोश में तरबियत पाने लगे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर से मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और अपनी वालिदा मोहतरमा के पास रहने लगे तो हजरत उम्मे ऐमन, जो आपके वालिद माजिद की बांदी थी, आपकी खातिरदारी और खिदमतगुजारी में दिन रात जी जान से मसरूफ रहने लगे। ऐमन का नाम बरकत है। ये आपको आपके वालिद से मीरास में मिली थी। यही आपको खाना खिलाती थीं, कपड़े पहनाती थीं, आपके कपड़े धोया करती थीं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना मुनव्वरा, आपके दादा के नन्नीहाल बनु अदी बिन नज्जार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शौहर की कब्र की जियारत के लिए तशरीफ ले गईं। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद की बांदी उम्मे ऐमन भी इस सफर में आपके साथ थी। वहां से वापसी पर अबुआ नामी गांव में हजरत बीबी आमना की वफात हो गई और वो वहीं मदफून हुई। वालिद माजिद का साया तो विलादत से पहले ही उठ चुका था। अब वालिदा माजिदा की आगोश शफकत का खात्मा भी हो गया, लेकिन हजरत बीबी आमना का यतीम जिस आगोश रहमत में परवरिश पाकर परवान चढ़ने वाला है, वो उन सब ज़ाहिरी असबाब तरबियत से बेनियाज है। हजरत बीबी आमना की वफात के बाद हजरत उम्मे ऐमन आपको मक्का मुकर्रमा लाए और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया और दादा ने आपको अपने आगोश तरबियत में इंतहाई शफकत और मोहब्बत के साथ परवरिश किया।
और हजरत उम्मे ऐमन आपकी खिदमत करती रहीं। जब आपकी उम्र शरीफ 8 बरस की हो गई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। प्यारे व्यूअर्स, ये था सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज का दूसरा एपिसोड।